Okay. First question, which of the following has highest melting point? Now tell me, melting point will be decided by what property? Basically, what is to be compared? Ionic character. Perfect. So, simple concepts के ऊपर ध्यान देना. Melting point is proportional to the ionic character. Now, as per Fajan's rule, ionic character down the group Increases. increases, and even ionic character is proportional to the metallic character. So ionic character and metallic character down the group increases, and with that the melting point also increases. So the options were from the same group, that is beryllium, magnesium, calcium and barium, and down the group ionic character बढ़ता है, तो answer is D. Barium chloride would have the highest melting point. ठीक है. अब दूसरी बात, अगर क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से हाईएस्ट लेटाइस एनर्जी किसका है? BeCl2. BeCl2, because lattice energy down the group decrease होता है, and lattice energy is something which is related to covalent character, या फिर जिसको polarizing power भी बोलते हैं. ठीक है. So lattice energy in a way is related to solubility. Any salt, any compound would be soluble in water if its hydration dominates the lattice. अगर हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करती है लेटाइस को, तो फिर वो कंपाउंड सोल्यूबल होगा. अब होता क्या है कि बेरिलियम वाले सॉल्ट्स जो है, उनका हाइड्रेशन एनर्जी बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज इज मच हायर. सो in most of the beryllium salts, the hydration is more than lattice. That is why the beryllium salts are more soluble. And in general, as a trend, solubility down the group goes on. Solubility down the group goes on Decreasing. decreasing. But there is an exception for two of the compounds. And what were they? Halides and hydroxides. Halides and hydroxides. Halides में भी specifically fluorides का exception है वो. सारे halides का नहीं है. Fluorides and hydroxides of the S block alkali या alkaline earth metals की solubility down the group बढ़ती है. Down the group बढ़ती है. Because उस केस में hydration lattice को dominate नहीं कर पाता. That's it. समझा? तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके थ्रू समझ सकते हैं. आयोनिक कैरेक्टर इज रिलेटेड टू मेल्टिंग पॉइंट एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इज रिलेटेड टू लैटिस एनर्जी. इज रिलेटेड टू कोवेलेंट कैरेक्टर. ये जस्ट छोटे छोटे फंडास याद रखना. So, hmm. lattice energy also influences the bond strength. Hmm. So, if an ionic bond will be stronger than a covalent bond, Yeah. instead of being proportional to ion, it is proportional to covalent character. So, isn't it? I didn't get it. It should have normally been proportional to ionic character rather than covalent character. Since as the ionic character will increase, because ionic bond is stronger than covalent bond, Hmm. then even Now your lattice energy should confusion have is increased. related with the thermal decomposition, I think. कि जैसे अगर if I talk about lithium का carbonate versus other carbonates, ठीक है. So which is thermally more stable? Na2CO3. And why it is thermally stable? Because it does not decompose even हाँ, at high डिकम्पोज क्यों नहीं temperatures. होता है? मतलब why the Na plus and CO3 minus 2 can't separate? Because its lattice energy is high. नहीं, because there is more of ionic character in it. There is ionic bond present between Na plus and CO3 minus. See, none of the bonds are 100% ionic or 100% covalent. An ionic compound can have covalent character or a covalent compound can have ionic character. It depends on what are the cation and the anion present. So Li2CO3, वैसे तो अगर theoretically पूछूं तो you will say it's an ionic compound. But then because of Li plus having more polarizing power with the carbonate ion,
the bond formed between them is partially कैसा है, कैसा बॉन्ड होता है Li और CO3-2 के बीच में? partially covalent. पार्शियली कोवेलेंट ना, मतलब ये एक आयोनिक कंपाउंड है लेकिन विथ मोर ऑफ, Covalent character. ठीक है, विथ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसीलिए Li और CO का बॉन्ड तोड़ना आसान है, इसलिए जब इसको थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो वी गेट लिथियम का ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन Na और CO3-2 के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। तो अगर वो आयोनिक बॉन्ड होगा तो इसको हीट करने पर ये डिकम्पोज नहीं करेगा। समझा? Yes, sir. Li2CO3 का लेटाइस एनर्जी ज्यादा है का मतलब इसमें आयोनिक कंपाउंड के साथ साथ कोवेलेंट कैरेक्टर भी है, और इसमें मोर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर है। इट हैज वेरी लेस ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, आई कैन से। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं इसका लेटाइस एनर्जी कम है, इसका लेटाइस एनर्जी ज्यादा है। समझा? Yes, sir. नेक्स्ट, विच कंपाउंड इज हाईएस्ट कोवेलेंट? LII. बिकॉज कोवेलेंट कैरेक्टर इज गवर्न्ड बाय फजान्स रूल के 3 conditions. Just tell me the 3 conditions for a covalent compound, rather covalent character. Small cation, large anion. It's small cation with a large anion and a high positive charge. high positive charge. Increase. High. ठीक है, तो ये 3 conditions आपको चेक करना है। Now out of the options, the cation remains the same and even the positive charge remains the same. So your covalent character will be decided by the anion, and larger the anion, higher is the covalent character. Answer is D. Then the acid having OO bond, what is OO linkage called? Pyro link. नहीं, this is not pyro linkage. OO is peroxy linkage. पायरो और पेरोक्सी में फर्क है ना? अगर हम सल्फर के ऑक्सी एसिड को कंसिडर करें, हाँ, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स को कंसिडर करें, SOS, when there is single oxygen shared between the 2 non-metallic atoms, then it is called a pyro linkage. But when 2 oxygen are shared, then it is called peroxy linkage. बराबर? So H2S2O7 oleum is a Yes, sir. pyro acid, but H2S2O8 is Marshall's acid, which is peroxy disulfuric acid. ये peroxy linkage है। समझा? Yes, sir. और एक pyro acid कौन सा है? मोनोसल्फर वाला। H2SO5। दो peroxy acids है सल्फर के ऑक्सी एसिड्स में, एक कारोस एसिड बोलते हैं और दूसरा है मार्शल्स एसिड। हमेशा ध्यान में रखना। एंड दे ऑल बोथ हैव द SOOS वाला लिंकेज। ऑब्वियसली इसमें नहीं रहेगा, इसमें SOOH वाला लिंकेज होता है, एक ही सल्फर है ना। ऑक्सी एसिड्स में पढ़ा है ना ग्रुप 16? Yes, sir. Next, the following salt shows maximum covalent character. Once again, तीनों कंडीशन अप्लाई करो। Small cation, large anion and a high positive charge. Anion सेम है। कटाइन की बात करें तो अल्यूमिनियम पे +3 है, मैग्नीशियम पे +2 है, सीजियम पे +1 है एंड लेंथेनम पे +3 है। पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे अल्यूमिनियम एंड लेंथेनम आर द ऑप्शंस।
तब मुझे बताओ हाउ वुड यू डिसाइड? Aluminum is a p block element, and also its size is also smaller than. परफेक्ट, बिकॉज अल्यूमिनियम थर्ड पीरियड एलिमेंट है और लेंथेनम अपना सिक्स पीरियड एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एल्यूमिनियम का साइज लेंथेनम 3+ से छोटा होगा और पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड्स जो है वो ज़्यादा कोवलेंट होते हैं, so that's why the answer is option A. The bond that exists between ammonia and BF3 is called. सिंपल है ना ये तो, फटाफट आंसर दो, सिंपल है तो. Coordinate bond. Coordinate, because the lone pair from the nitrogen is donated to the electron deficient boron. In the following, which one have zero dipole moment? All. सारे. All of them. अब यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक भी है कि अगर सेंट्रल एटम सारे सिमिलर एटम से बॉन्डेड है एंड उसके पास अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो उसका ज्योमेट्री हमेशा परफेक्ट होगा and the dipoles will be equal and opposite, that is why they will cancel each other and the dipole moment would be zero. Any compound in which the central atom is bonded to the similar atoms and the central atom doesn't have a lone pair, the molecule will always have a zero dipole moment. और बहुत सारे एग्जाम्पल आप सोच सकते हो. बोरॉन फैमिली में BF3, कार्बन फैमिली में CCl4, नाइट्रोजन फैमिली में नहीं पॉसिबल होगा नाइट्रोजन फैमिली में, बिकॉज द अमोनिया नाइट्रोजन का लोन पेयर विल बी प्रेजेंट. ठीक है, यहाँ लोन पेयर होता है, लेकिन फॉस्फोरस के केस में पेंटावेलेंट कंपाउंड बन सकता है, इसलिए ये पॉसिबल है. सल्फर के लिए SF6, आयोडीन में IF7, हेलोजन फैमिली, इंटर हेलोजन कंपाउंड, दीज ऑल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट. फाइन. नेक्स्ट, द डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr इज गिवन. ये कूलम मीटर है, कूलम मीटर, इट्स नॉट सेंटीमीटर. कूलम मीटर, which is the unit of dipole moment given by product of charge and distance. So the dipole moment of HBr is given and the interatomic spacing is 1 angstrom. तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर HBr का कितना होगा? ये आता है देखो, अभी अभी हमने बात की कि कोई भी कंपाउंड प्योरली आयोनिक या प्योरली कोवेलेंट नहीं होता है. So the covalent compounds can have ionic character in it and vice versa. कितना ionic character होता है, that could be calculated by taking a ratio of dipole moment observed to the dipole moment theoretical multiplied by 100. Observed dipole moment will be that which will be given in the question. तो HBr का dipole moment उन्होंने already दिया है, which is 1.6 into 10 power minus 30. ठीक है, और यूनिट दिया है कूलम इनटू मीटर. अपॉन थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट HBr का विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस. तो ये चार्ज है आपका डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस. अब एक यूनिट चार्ज, एक यूनिट कूलम्बिक चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. और जो इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस है वही तो आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, जो 1 एंगस्ट्रॉम दिया है क्वेश्चन में. सो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 100. आप जब कैलकुलेट करोगे तो 1.6 ग्रॉन ऊपर जाएगा 10⁻⁻1 इंटू 100. सो द आयोनिक कैरेक्टर इन HBr इज 10%. आयोनिक कैरेक्टर 10% है, मतलब इट इज 90% कोवेलेंट एंड 10% आयोनिक. और जैसे जैसे नीचे जाओगे द आयोनिक कैरेक्टर विल इंक्रीज.
समझा कैलकुलेशन? Yes, sir. Yes. Next, N2 is less reactive than cyanide due to Absence of Absence of dipole moment. dipole moment. absence of dipole moment या absence of bond polarity. अब ये क्वेश्चन रिलेटेड किससे है? N2 which have electron sum equal to 14 and cyanide also having electron sum equal to 14. दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो तो 3 ही है ना, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी कम है, और उसका रीजन है कि साइनाइड में देयर इज अ डाइपोल मोमेंट व्हिच मेक्स इट मोर रिएक्टिव. Amongst the given chlorides, the compound with greatest and least ionic character respectively are, simple है ना, LiCl will have RBCl, highest covalent character, so it will have least ionic character. और RBCl, अच्छा, LiCl और BeCl2 में कौन होगा? BeCl2. हाँ, क्योंकि अब जब हम LiCl वर्सेस BeCl2 कंसिडर करते हैं तो Li पे प्लस और Be पे +2, और साइज वाइज लेफ्ट टू राइट आयोनिक साइज घटता है, तो ये स्मॉल कटाइन विद अ हाई पॉजिटिव चार्ज है, तो बेरिलियम क्लोराइड का कोवेलेंट कैरेक्टर लिथियम क्लोराइड से ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, और ग्रेटेस्ट आयोनिक कैरेक्टर किसका होगा? RBCl. तो आंसर इज बी. समझा? Yes, sir. Which molecule is linear? चलो मुझे सबका CO2. हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बताओ. आंसर तो ठीक है आ जाएगा. टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री क्विकली. NO2. sp3. नहीं No, नहीं sp2, नहीं. sp2, sp2. स्ट्रक्चर कैसा होगा बताओ. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में पढ़ा है आप लोग ने? सी, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में किसी का भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोचो. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डू वी हैव इन नाइट्रोजन? 12. हाँ, 5. 5. सो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 2 तो शेयर हो जाएगा. Yes, sir. ठीक है, नाउ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचा है, बट नाइट्रोजन जो है वो 2 डबल बॉन्ड्स नहीं बना सकता है because the number of electrons which it can utilize to complete the octet is 3. इसलिए Yes. अब यहाँ पर नाइट्रोजन लोन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. So 4 electrons are being utilized and now this N contains one unpaired electron. And NO2 is the best example of an odd electron molecule having 7 electrons in the valence shell. And because of this, it is also paramagnetic in nature. इसके पैरामैग्नेटिक का रीजन उसका स्ट्रक्चर ही तो है. ठीक है, अब 2 खास बात. पहली, द नाइट्रोजन हैज सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड इट इज पैरामैग्नेटिक. सेकेंडली, it has 2 BPs and 1 orbital containing odd electron. तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होगा, ज्योमेट्री बेंट है, एंड व्हाट अबाउट द बॉन्ड एंगल? My question is will it be less than 120 or greater than 120? बेंट है, रेडिकल होने की वजह से 120 से बड़ा होगा या छोटा है? Less than 120. It should have been. It should have been less than 120 डिग्री. अगर यहाँ लोन पेयर होता तो वो 120 से कम होता, क्योंकि LP BP को रिपेल करता है. But radical does not have that much higher tendency to repel the BPs.
So इस केस में the electron density over here repels more, and that is why the angle exceeds 120 and it becomes 134 degree. अब इसके रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, NO2, NO2 माइनस और NO2 प्लस, इसका बॉन्ड एंगल कंपेयर करो. तो NO2 का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको. अब NO2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? अनाइन ऑफ द ऑक्सी अनाइन रादर. मैंने एक सिंपल रूल क्या बोला था, बोलो. Form the oxy acid. वेरी गुड, एक्सलेंट. ये स्ट्राइक होना जरूरी है. तो NO2 माइनस का ऑक्सी एसिड कौन सा है? फास्ट फास्ट रिस्पॉन्ड करते जाओ तो आपको अच्छा भी लगेगा. यू विल नो समथिंग. क्विक. अरे NO2 माइनस का ऑक्सी एसिड कौन सा है? HNO2. HNO2. अब ऑक्सी एसिड बनाने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट बॉन्ड यू शुड ड्रॉ? OH. Nitrogen bonded to OH. And then you have one oxygen. So this will be joined by Single bond. सिंगल बॉन्ड बनाओगे तो ऑक्सीजन का डाइवेलेंस से सेटिस्फाई कैसे होगा? यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो गया है ना, यहाँ पे खाली ऑक्सीजन है. एंड नाइट्रोजन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शेयर करना है. तो यहाँ पर सिंपली ऑक्सी Double एसिड्स में bond. ना एक ही OH होते हैं, बाकी सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही होते हैं. अब देख लो कोई भी स्ट्रक्चर. एंड अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखोगे, 3 आर यूटिलाइज, तो वन ऑफ देम विल बी एग्जिस्टिंग एज अ लोन पेयर. तो दिस इज नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर. अब बताओ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp2. तो ये मैं H प्लस निकाल दिया, तो ये NO2 माइनस हो गया विथ 3 लोन पेयर्स. तो ये sp2, ये भी बेंट होगा, लेकिन अब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है तो इसका एंगल 120 से कम है. 117 होता है, बट ये याद रखने की जरूरत नहीं है. मेन चीज वेरी इंपॉर्टेंट, NO2 हैज अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 से ज्यादा, 134 डिग्री, क्योंकि उधर लोन पेयर नहीं है रिपेल करने के लिए, रेडिकल है, रेडिकल. अब NO2 प्लस, कैन आई से NO2 का जब ये एक इलेक्ट्रॉन गायब होगा तो नाइट्रोजन विल एक्वायर अ, sp hybridization. वेरी गुड, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा ना वो. तो यहाँ पर NO2 से ही डिराइव करके मैं NO2 प्लस का स्ट्रक्चर लिख लूंगा. यहाँ पे रेडिकल गायब हुआ तो ये sp और लीनियर हो गया, तो ऑब्वियसली इसका एंगल 180. 180 के आसपास. आई डोंट नो द करेक्ट वैल्यू, इवन दैट इज नॉट सपोज टू बी रिमेम्बर्ड, बट द फाइनल थिंग इज बॉन्ड एंगल का ऑर्डर इज, लिख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NO2 plus is greater than NO2 and then comes NO2 negative. The confusion would be between these two. Fine. Yes, Keep sir. noting down. Keep noting down. चलो, तो NO2 will be sp2 with a bend and specifically 134 degree angle. ClO2. अब देखो सेंट्रल एटम ड्रॉ करो, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 7. तो 2 ऑक्सीजन में कैसे बटेगा? हाउ विल यू बॉन्ड? 2 double bonds. 2 डबल बॉन्ड्स पॉसिबल है ना अभी तो एक लोन पेयर और एक रेडिकल. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? So, but हम्म, it's exceeding the octet rule. या दीज आर हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स, एक्सपांडेड ऑक्टेट कंपाउंड्स है. सल्फर का SF6 भी ऑक्टेट रूल को कहाँ सेटिस्फाई करता है? PCl5 भी नहीं करता है. ये सब 10 इलेक्ट्रॉन
12 इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड्स है, ये सब हाइपरवेलेंट एक्सपांडेड ऑक्टेट बोलते हैं। तो यही तो ऑक्टेट रूल फेल होता है ना। Yes, sir. ठीक है, so this will have 2 BPs, 1 LP and 1 radical. It will be sp3 एंगुलर या वी शेप्ड, एंड रेडिकल होने की वजह से इसका जो एंगल है नॉर्मली अगर sp3 बेंट देखोगे तो 104 के पास आता है। एग्जांपल वाटर, यस और नो? Yes, sir. लेकिन यहाँ पर वापस वही कॉन्सेप्ट, अगर रेडिकल होगा ना तो ऑड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक नेचर, ये दो चीज तो हमेशा याद रखना, ये ऐसा है। ठीक है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक के साथ साथ इसका जो एंगल है वो 104 से ज्यादा होगा, ये ऑलमोस्ट 110 डिग्री का एंगल बनाता है। रीजन है कि यहाँ पर एलपी पीपी का रिपल्शन जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि एलपी के साथ एक रेडिकल भी है। CO2 is famously sp linear. H2S is similar to H2O with a bent or a V-shaped geometry. यहाँ दो लोन पेयर है तो इधर एंगल 104 से थोड़ा कम। इनफैक्ट यहाँ पर ड्रैगोज रूल अप्लाई होता है, जिसमें बोला जाता है कि ये हाइब्रिडाइजेशन शो ही नहीं करता है, इसीलिए इसका एंगल समवेयर 90 डिग्री हो जाता है। इट इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू वाटर। हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 15 बराबर। Yes, sir. फिर मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज sp. In which of the following central atom does not use sp3 hybrid orbitals? बोलो किसमें यूज नहीं करता है? BeF3 minus. And why is that so? Because the hybridization is sp2. क्योंकि यहाँ पर बेरिलियम 3 बॉन्ड्स बना रहा है, इसीलिए उसका sp2 होगा। बाकी सब में नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस एलपीज अगर करोगे तो हर एक में 4 आएगा, एंड दे ऑल विल बी sp3। XeF2 sp3d. इसमें भी सिंपल है। Xe के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 फ्लोरीन के साथ जाएगा, बचे 6, मतलब 3 एलपी। तो ये हो गया 2bp प्लस 3lp, मतलब इट विल बी sp3d एंड इट इज गोइंग टू बी इन द लीनियर फॉर्म। अच्छा, sp3d में ज्योमेट्री क्या होता है? Trigonal bipyramid. ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो उसमें 3 बॉन्ड्स इक्वेटोरियल होते हैं और 2 एक्सियल होते हैं। तो अगर मैं प्लेसमेंट ऑफ लोन पेयर्स की बात करूं, in this positions where are the lone pairs favored? Equatorial position. The lone pairs always will occupy the equatorial positions to minimize what? Repulsion. Bond pair repulsion. LP repulsion। यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए लोन पेयर्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान देना। अगर मैं आपको PCl3F2 कंपाउंड देता हूँ, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जहां पर F कैन बी एट द इक्वेटोरियल, क्लोरीन एट द एक्सियल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? दिस इज ऑल्सो ट्राइगोनल बाइपिरामिड। द correct representation of the atoms in PCl3F2 would be what? तो यहां पर ना एक बॉन्डिंग का रूल आता है, बेंट्स रूल। बेंट्स रूल बोलता है कि इन ट्राइगोनल बाइपिरामिड, bipyramid compound, LPs occupy
equatorial position to minimize the LP-LP repulsion, and a more electronegative atom occupy axial position. Occupy axial position to minimize attraction from the central atom. Minimize the attraction from the central atom. This is to minimize LP-LP repulsion. This is to minimize the attraction from the central atom. तो बेंट्स रूल बोलता है कि ये जो तीन इक्वेटोरियल पोजीशंस है वो sp2 ऑर्बिटल्स को यूज करता है और ये वाले दो एक्सियल पोजीशन pd ऑर्बिटल्स यूज करता है. इक्वेटोरियल में sp2 के ऑर्बिटल्स होते हैं और एक्सियल में pd ऑर्बिटल्स होते हैं, प्योर pd ऑर्बिटल्स जिसमें s कैरेक्टर नहीं होता है. तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज related with the percentage of S character. Hello. Hello. हो ना? Yes, sir. हाँ. So electronegativity is proportional to the percentage of S character. तो एक्सियल पोजीशन में S कैरेक्टर होता ही नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट जीरो. तो इसकी वजह से द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ऑर्बिटल इज वेरी लेस. इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से इतने अट्रैक्ट नहीं करते हैं और इसीलिए एक्सियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड शॉर्ट होते हैं. PCl5 में बताया है. And it's a well-known concept that axial bonds are longer than the equatorial bonds, and that is the reason these bonds would always break down first, right? तो अब correct arrangement होगा Cl at the equatorial and F at the axial position. This is the most appropriate arrangement for PCl3F2 molecule. ठीक है, तो कुछ याद रखो ना रखो, बेंट रूल सिंपल है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिड में एलपीस को इक्वेटोरियल पे रखते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अगर अलग अलग है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल पे रखना है. दैट्स इट. ये है बेंट्स रूल. Sir, हाँ. sir, can you add Mariam to the meeting? She's exited because of her internet connection. डन. समझा? Yes, sir. चलो, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट्स बता रहा हूँ ध्यान देना, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. 14th, which has the shortest CC bond length? C2H2. Because single has the highest bond length and CC का single bond 154 होता है, double 134 होता है, triple 120 होता है. तो answer is C2H2, that is ethyne. Hybridization of Ag in the linear ammoniacal complex is? ये तो अपना टोलेंस रिएजेंट का कटायन है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 क्या होगा? SP. sp linear. फिर 1,2 ब्यूटाडाइन में कौन कौन से टाइप के बॉन्ड्स होते हैं? C double SP, bond yes. C and C. H2 H and H3. बाय द वे, जब दो डबल बॉन्ड्स एक ही कार्बन पे होते हैं ना. हेलो. Sir, हाँ. one more double bond, no? 1,2 butadiene. अरे हाँ, गायब हो गए, सॉरी. When one carbon has two double bonds, they are called allenes या फिर cumulines बोलते हैं. Allenes या cumulines. ठीक है. What is the hybridization of first carbon? SP2. 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 ये वाले पे SP.
जब 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं तो sp होगा, एक पाई बॉन्ड होगा तो sp2, और एक भी नहीं होगा तो ऑब्वियसली sp3 होगा। मतलब इसमें तीनों टाइप के हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है। आंसर इज डी। The type of hybridization of boron in diborane is sp3. sp3, and diborane has a special bond called Banana bond. banana bonds. So here the banana bond is formed between the boron, hydrogen and the other boron atom. ये जो बीच के ब्रिज बॉन्ड्स है वो बनाना बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, so this is diborane का structure in which these four are called as terminal bonds and these two are bridge bonds. What is the speciality of the banana bonds? How many nuclei and electrons are involved? 3 center, 2 electrons. इसमें 3 न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन तो 2 ही शेयर हो रहा है, देखो 1 और 2, लेकिन न्यूक्लियाई कितना है, H का है, बोरॉन का है, बोरॉन का है, इसलिए 3 न्यूक्लियाई और 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं ये। बाकी सारे नॉर्मल बॉन्ड्स है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। So that is what you have to remember in diborane. Hybridization is sp3. There are 2 bridge bonds which are 3 center 2 electron and 4 terminal bonds which are 2 center 2 electron. Also, the 4 bonds are lying in the same plane. एक ही plane में होते हैं, और bridge bonds non-planar होते हैं, not in the same plane. अच्छा, BH3 as a monomer and B2H6 as a dimer. Hybridization is same or different? Different. This is sp2 and this is sp3. An important point to be noted. sp2 BH3 में होता है, but जैसे ही वो B2H6 बनाता है, it's sp3. समझा? So can you draw the structure of pH3? BH3 is B with H, H, H. No lone pairs. तो sp2 कैसे हुआ फिर? 3 bonds है, 3 BPs, no LPs. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना यूज करेगा? 3 ना? Yes, sir. That's sp2. Okay, but sir, Confusion there क्या are था? no pi bonds. तो sp2 में हमेशा पाई बॉन्ड्स होता है, ऐसा किसने बोला? Okay, I didn't know that. sp2 में हमेशा पाई बॉन्ड्स नहीं होते हैं, उसमें 3 बॉन्ड्स होते हैं। इनफैक्ट SO3 में पाई बॉन्ड्स है, लेकिन ये सबको हम सुपर सिंगल बॉन्ड्स कंसिडर करते हैं, तो ये भी sp2 प्लेनार है। AlCl3 ये भी sp2 प्लेनार है। तो जब भी 3 BPs और no LPs होगा, इट इज ऑलवेज sp2. Yes, sir. Okay. ओके, Yes. वैसे ही sp में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है। अल्काइन में आप sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कंसिडर करते थे, बट कार्बन Yes. डबल बॉन्ड भी तो sp है। अभी हमने ब्यूटाडाइन देखा जिसमें क्यूमुलिन वाला डबल बॉन्ड एक ही कार्बन पे था, 2 डबल बॉन्ड्स, वो भी sp है। Ag का अभी कॉम्प्लेक्स जो देखा वो भी sp है। दिस इज द अमोनियकल कॉम्प्लेक्स AgNH3 ट्वाइस, दिस इज आल्सो sp। तो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल बॉन्ड्स होगा तो ही sp2 और sp पॉसिबल है। ठीक है, Yes, sir. याद रखो मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सुपर सिंगल बॉन्ड्स, क्योंकि पाई बॉन्ड्स आर नेवर इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन। Yes, sir. बॉन्ड एंगल इन pH3 इज, अमोनिया से कंपेयर करना है, लेस या Less than ग्रेटर? NH3. लेस देन NH3। यहीं पे तो ड्रैगोस रूल आता है, जहाँ पर अमोनिया का बॉन्ड एंगल 160 डिग्री है, बट फॉस्फीन में 93 डिग्रीज हो जाता है, बिकॉज फॉस्फीन में हम हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर करते ही नहीं है,
and we consider there is a pure orbital overlap between phosphorus and hydrogen, जिसकी वजह से the angle is almost perpendicular equal to 90 degree. The correct order of hybridization of central atom in the following species is NH3, sp3, sp3 with one lone pair, so pyramidal होगा. Platinum का complexes with coordination number 4 are always dsp2, DSP2. dsp2 square planar. Platinum, rhodium, the heavy transition metals, platinum, rhodium, gold, always forms a square planar complex irrespective of the type of the ligand. प्लेटिनम के साथ चाहे कोई भी लिगेंड डाल दो वो DsP2 ही होगा, एक फैक्ट ध्यान में रखना. फिर ये है आपका sp3d और ये अभी अभी बताया sp2. ऑप्शन नहीं है. so in option B it should have been sp3d instead of dsp2. हाँ, अब ये sp3d और dsp3 में फर्क ये होगा कि एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, आंसर तो वैसे यही होगा, बट दिस शुड हैव बीन मोर करेक्टली रिटन एज sp3d. The smallest bond angle is found in. So how will you determine the bond angle? As hybridization increases, as in sp3d will have a higher smaller bond angle as compared to sp3. Perfect. sp का एंगल सबसे ज्यादा होता है 180 डिग्री. फिर sp2 is 120, sp3 is 109. जैसे जैसे आगे बढ़ोगे with involvement of d orbital the angle will decrease. So it is obvious the answer is sp3d3 वाला IF7 molecule. Then hydra acids of halogen in increasing order of acidity down the group. Increases. So HI is the strongest halo acid and HF is the weakest. In a regular octahedral molecule MX6, the number of XMX bonds at 180 degree is 3. 3. Octahedron में 1 2 3 4 एक प्लेन में, पांचवा और छठा ऊपर. So this is 180, this is 180 and the top and bottom is 180. अच्छा 90 डिग्री कितने होंगे? 4 as in 4. नहीं, None. The square planar ones will be 90. The one which is in the center plane side on the center. so these are 490 degree definitely yes. ये वाला इस प्लेन के साथ, इस x के साथ क्या एंगल बना रहे हैं? प्लेनार है और एक ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा? XMX. नहीं समझा? अरे एक ही प्लेन में है, 4 तो 90 डिग्री हो गए और एक अभी उससे परपेंडिकुलर ऐसा है. व्हाट विल बी दिस एंगल? 90 degree. तो ये ऐसे कितने और 90 डिग्री बनाएगा? ऊपर वाला एक्सियल बॉन्ड 4. 4 और नीचे वाला भी 4. मतलब टोटल 90 डिग्री एंगल्स कितने होते हैं? 12. 12. एक और क्वेश्चन बन गया. 180 वाले 3 होंगे और 90 वाले 12 होंगे. समझा? Yes, sir. In an octahedral structure, the pair of d orbitals involved in D2sp3 is C. dx square minus y square and dz and square. perfect.
because they will have maximum electron density. X square minus y square matlab the orbitals are along the x and along the y, and dz square matlab along the z axis and in the xy plane. तो इस कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्स हो जाती है. अच्छा, जब dsp2 होता है तो ये d कौन सा होता है? dz square. dz square. और sp3 d3 में d कौन से होते हैं? And dxy, yz and zx. एक्सेलेंट. बिकॉज ये तीन कॉम्बिनेशन आपको मैक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है. देखो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने. D2 में स्क्वायर वाले इन्वॉल्व होते हैं. एक ही D होगा तो Z स्क्वायर. 3 D होंगे तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ XY, YZ, ZX to have max electron density in the orbitals. So when you solve the questions, try solving in a way that इसके रिलेटेड जितने भी और कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान आते हैं, you should be able to revise those concepts with single question. क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन नहीं देखने का, उसके रिलेटेड जितने और क्वेश्चन आप सोच सकते हो. जैसे इसमें और प्रोबेबल क्वेश्चन ये हो सकता है कि डी sp2 में और sp3 d3 में कौन से d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है. तो आपके ऐसे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. Which of the following has a pyramidal shape? Pyramidal. SO3. Wrong. PCl3. PCl3. पिरामिडल के लिए sp3 विथ 1 लोन पेयर होना चाहिए. अभी आप अगर वेस्पर थियरी समझते हो तो PCl3 में सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है. 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 गए, बचे 2, मतलब 3bp 1lp. sp3 हुआ कि नहीं? SO3 में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 3 ऑक्सीजन है, सबको 2-2 बटेगा. देयर विल बी नो LP. तो दिस इज sp2 प्लेनार. अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. CO3 2 माइनस किससे ड्रॉ करोगे? H2CO3. तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, तो C के साथ OH, C के साथ OH और एक ऑक्सीजन बचा, डबल बॉन्ड. अब H निकालो, H निकालो और यहाँ पे माइनस माइनस कर दो. दिस बिकम्स योर sp2. अच्छा, इसमें खास बात ये है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? CO बॉन्ड ऑर्डर बोलो जल्दी. 1.3. 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बटा 3 में, दैट इज 1.33. 4/3 होता है. सर लास्ट टाइम बताया भी था. और NO2 नेगेटिव में इट इज HON डबल बॉन्ड O विद अ लोन पेयर. ये किया भी हमने. ये निकल जाएगा और यहाँ पे माइनस. तो दिस इज sp2 बेंट. पिरामिडल है आंसर ऑप्शन PCl3. सारे स्ट्रक्चर को एनालाइज करो एंड आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन एंड द ज्योमेट्री और द शेप प्रॉपरली. गेटिंग इट? किसी को डाउट है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने में? एनीवन? At least respond when I ask. No, sir. कहाँ थे हम लोग? 24, 25. In which compound the hydrogen bonding is strongest in the liquid phase? HF. Chef. Undoubtedly because of more electronegative fluorine. Which does not show resonance? Ethylamine. Because it does not have any conjugation. फिर enolic form of acetone contains कितना sigma pi और lone pair? Sir. So can you explain that resonance rule which you taught in your video? See, for a molecule to show resonance, there are two important conditions.
One is a conjugation between three atoms can be of the type A double bond B single bond C. C के ऊपर it can have a multiple bond, that is double or a triple, or it can have lone pair, negative, positive और a radical. मतलब इस टाइप का कॉन्जुगेशन कहीं पे भी दिखे वहां रेजोनेंस होगा ही होगा. तो अगर मैं आपको अलाइल ग्रुप बताऊं CH2 डबल बॉन्ड CH and CH2 plus, this is allyl carbocation. So I can visualize this as A, B, C and A, B के बीच में डबल, B, C के बीच में सिंगल और C के ऊपर क्या है प्लस. कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, A डबल बॉन्ड B ऑल्टरनेट C पे प्लस. समझा? ऐसा नो. Yes, sir. फिर एसिटेट आयन अगर देखे तो उसमें भी रेजोनेंस होता है, इट्स स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. So this is of the type A double bond B single bond C पे Negative charge. नेगेटिव चार्ज, या फिर नेगेटिव जहां होगा वहां लोन पेयर तो होगा ही बाय डिफॉल्ट. ठीक है. सिमिलरली CH2 डबल बॉन्ड CH OH विनाइल अल्कोहल is of the type A double bond B single bond C पे लोन पेयर. देन ब्यूटाडाइन का अगर मैं बात करूं H2C डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 1,3 ब्यूटाडाइन, इट्स A डबल बॉन्ड B ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड C पे डबल बॉन्ड. ये सब में रेजोनेंस पॉसिबल है. समझा? Yes, sir. और दूसरा एक और कंडीशन दिया था, इफ देयर आर टू एटम्स बॉन्डेड बाय अ सिंगल बॉन्ड एंड वन इज गरीब एंड दूसरा इज अमीर विद अ नेगेटिव और लोन पेयर, तो भी वो रेजोनेंस बताएगा. तो इसका एग्जांपल कैन बी CH3 CH प्लस विथ OH लोन पेयर. A पे प्लस सिंगल बॉन्ड B पे लोन पेयर. ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज हो सकता है ना. So this also Yes, can sir. show a resonating structure as CH3 CH double bond OH. एक लोन पर बचा यहाँ पॉजिटिव and this carbon will be satisfied with tetravalency. Fine. Yes, sir. Okay. हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे वैसे? हाँ, इनॉलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन. So acetone has CH3C double bond O and CH3. This is a keto form because of carbonite. Enol form is, अच्छा टॉटोमेरिज्म का भी एक कंडीशन दिया है मैंने, बताओ. पता है क्या? A double bond B single bond C and OH. हाँ, A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C और उस एटम पे H, और ये H कैसा होना चाहिए? एसिडिक. तो अब ये एसिडिक H जाकर A के ऊपर रीअरेंज होता है. तो अब टॉटोमेरिक फॉर्म होता है AH सिंगल बॉन्ड B एंड यहाँ डबल बॉन्ड. दिस इज द टॉटोमेरिज्म का जनरल रूल. तो अगर मैं यहाँ सेटिस्फाई करूँ तो A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C पे I can write this as CH2 with a H. A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C पे H. तो इसका टॉटोमेरिज्म फॉर्म कैसे मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड C पे OH and CH3. This is called enol form. बराबर. Yes, sir. अब इस enol फॉर्म में लोन पेयर कितना है पहले वो देख लो. Two लोन lone पेयर pairs. सिर्फ ऑक्सीजन पे होगा तो टू लोन पेयर. पाई बॉन्ड भी सामने ही दिख रहा है एक, और सिग्मा बॉन्ड जितने हाइड्रोजन है प्लस जितने दिख रहे हैं वो. तो हाइड्रोजन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6
ठीक है, उसके अलावा 7, 8, 9 ये होंगे आपके सिग्मा बॉन्ड्स। क्लियर है? Yes, sir. तो है एक मिनट, आई थिंक वी मिस्ड वन बॉन्ड। CH2 डबल बॉन्ड C पे OH एंड CH3। हाँ, ये वाला सिग्मा और एक होगा ना, वी हैव टू काउंट दिस आल्सो, OH के बीच वाला। तो सिग्मा 10 होंगे, एक पाई होगा और एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर होंगे। ये कॉम्बिनेशन किधर है? टेन सिग्मा एक में ही है, 1 पाई एंड 2 लोन पेयर्स। आंसर क्या दिया है 27 का? Sir, answers 9 sigma only. अच्छा, हाइड्रोजन तो मैंने काउंट कर दिया ना। शिट, हाइड्रोजन इज ऑलरेडी काउंटेड ना, मैंने ये हाइड्रोजन जब काउंट किया तो दिस सिग्मा इज काउंटेड। सॉरी सॉरी, 9 सिग्मा ही है, बराबर है। 9 सिग्मा, एक पाई और 2 लोन पेयर्स, ऑप्शन ए। सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर कार्बोनेट आयन इज 3. 3 होंगे। Of the following sets, which does not contain isoelectronic species? This is simply adding up the electrons and identifying the isoelectronic species. क्या आंसर? Option C. ऑप्शन सी, बिकॉज सल्फर जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और कार्बन और नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है। ऑब्वियस है कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे, ये एक शॉर्टकट है आइडेंटिफाई करने का। फिर शेप ऑफ कार्बोनियम आयन इज कार्बोनियम, डाउट है क्या इसमें? Trigonal planar. ऑब्वियसली, बिकॉज कार्बन 3 बॉन्ड्स के साथ प्रेजेंट है and there is a deficiency at the carbon, so this is sp2 planar. What will be CH3 negative का hybridization? Carbon ion, sp3. Pyramidal. perfect. This is sp3 pyramidal, this is sp2 planar. And dichlorocarbene, dichlorocarbene, CCl2. Bend shape. Hybridization sp2. because of the lone pair, तो 2bp 1lp मतलब sp2 bend shape हो जाएगा। And next question मैंने डिस्कस किया है, in BRF3 molecule the LPs occupy equatorial position to minimize Lone pair. Repulsion. lone pair repulsions only. So it should be bond pair also, no? Because they are opposite to each other. So they are already placed at an angle of 180 degree ना, लेकिन उनका एक्शियल पोजीशन पे प्लेसमेंट इज बिकॉज द लोन पेयर्स आर ऑक्यूपाइंग द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मेन फंडा जो है, द LP-LP रिपल्शन इज मच ग्रेटर देन द LP-BP is much greater than BP-BP repulsion. So the problem to destabilize the molecule is with the LPs. इसलिए यहाँ पर हम जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर को रखते हैं तो वी से इट इज टू मिनिमाइज द LP-LP repulsion. BPs are taken care already and BPs are never a problem. बॉन्ड पेयर का रिपल्शन इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, दे ऑलवेज गिव अ स्टेबल ज्योमेट्री टू द मॉलिक्यूल। फाइन। Yes, sir.
Then a compound contains XYZ, oxidation state of X, Y and Z is given. A possible formula of the compound is. इसको कैसे solve करेंगे? Put in the values in each compound, and if the sum comes up to 0, That's it. that's the possible formula. Because a neutral molecule का sum of oxidation number is always equal to 0. So I think the answer comes out to be B. 33. Hybridization of atomic orbitals of nitrogen in NO2 plus. कर चुके हैं NO2 plus. sp sp NO3 minus sp2 and ammonium sp3 sp3. देखो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और एक्स्ट्रा चीजें करते हो तो आगे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पर आपको लगता है कि ये सब तो हम कर चुके हैं। जैसे मैंने NO2 प्लस ऑलरेडी पहले बता दिया था, ठीक है। तो while solving the questions also try to solve in a way that the related stuff is always covered in the same question. 34. In the process O2 plus say O2 plus 2, the electron is lost from anti-bonding pi orbital. क्योंकि O2 के न्यूट्रल मॉलिक्यूल में देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स। तो जो लॉस होता है वो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल से ही होता है। The bonds in K4 FeCN6 are Ionic and covalent. नहीं। कॉम्प्लेक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट। Oh, yeah. तो कोऑर्डिनेट तो होगा ही। अब साइनाइड के ट्रिपल बॉन्ड में कोवेलेंट भी है और K प्लस और FeCN6 -4 में आयोनिक भी है। तो कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा कोवेलेंट, आयोनिक, कोऑर्डिनेट तीनों ही बॉन्ड्स होते हैं। हमेशा नहीं, मतलब अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो। जैसे अगर LiAlH4 की बात करूं तो इसमें क्या बोलोगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में Ionic and covalent. कॉम्प्लेक्स के अंदर बॉन्ड कौन सा होता है बाबा? Coordinate. कॉम्प्लेक्सेस को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं। अब यहाँ पर H तो अकेला आइटम है तो कोवेलेंट है ही नहीं। हाइड्राइड जो है वो अपना लोन पेयर Al को डोनेट कर रहा है, तो इट इज फॉर्मिंग अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लाइक दिस, जहां पर H एक लिगेंड का काम कर रहा है और लिगेंड मेटल के बीच में हमेशा कोऑर्डिनेट ही होगा ना। समझा? Yes, sir. तो यहाँ पर अगर पूछा जाए तो इट विल बी आयोनिक एंड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट तो होगा, आयोनिक भी होगा। कोवेलेंट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि लिगेंड सिंगल एटम है कि मल्टी एटम्स है। समझता है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट। Which of the following salt gives white precipitate with AgNO3 and dilute H2SO4 solution and gives a green flame test? BaCl2. Because AgNO3 के साथ AgCl का white PPT बनेगा और बेरियम की वजह से एप्पल ग्रीन कलर का फ्लेम आएगा। That's barium chloride. Next, sodium nitroprusside when added to an alkaline solution of sulfide ions produces purple color due to the formation of। अच्छा, नाइट्रोप्रोसाइड किसको बोलते हैं? हाँ, क्या बोला आंसर? डी। बी नहीं, डी। डी करेक्ट। जो नाइट्रोप्रोसाइड आयन होता है ना, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इट इज Na4 FeCN6। Na4 FeCN6 Fe का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब इसको जब सल्फाइड आयन के साथ एडअप करते हैं
तो इट फॉर्म्स Na4 FeCN5 एंड एक साइनो निकाल के NOS वाला ग्रुप यहाँ पर बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये बनाता है Na4 FeCN5 NOS एंड दिस इज ऑल्सो अ डिटेक्शन टेस्ट फॉर द नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन का डिटेक्शन टेस्ट है। A salt is heated with dilute H2SO4 first and then with concentrated H2SO4. No reaction takes place. It may be कौन सा सॉल्ट सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे वो डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो? सल्फेट। लॉजिकल है ना, सल्फेट ऑलरेडी है तो सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं होगा। सॉरी, नाइट्रेट इज So, but कंफर्म। हाँ, there is OS reaction now for qualitative analysis of anions. OS plus BaCl2 plus dilute H2SO4, which will give white PPT of SO3 minus 2 or SO4 SO2. -2। हाँ, SO4 minus 2 and SO3 minus. हम्म, So then, like, it does react. If there is a reaction only, then would. नहीं वो सॉल्ट सल्फेट सॉल्ट नहीं होता ना। द सॉल्ट कैन बी बेरियम का क्लोराइड और नाइट्रेट और सल्फाइड और ऑक्सलेट। आप बेरियम सल्फेट को लेकर डाइल्यूट H2SO4 अच्छा हाँ एक मिनट, सॉल्ट So probable answer could also be oxalate because there is no reaction of sulfuric acid with oxalate. हाँ, ग्रुप के साथ नहीं है, नाइट्रेट का है। Yes, I think the answer should be this only because ये वाला तो अपना डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप में आता ही है और कॉन्सेंट्रेटेड में नाइट्रेट आता है। यस, तो अनायंस के एनालिसिस के हिसाब से इट शुडंट बी सल्फेट, इट शुड बी ऑक्सीडेट। करेक्ट है। ठीक है, नाइट्रेट इज कंफर्म्ड बाय रिंग टेस्ट। द ब्राउन कलर ऑफ द रिंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4NO. दैट्स कॉल्ड नाइट्रोसोफेरस कॉम्प्लेक्स। इसका एक्चुअल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में? FeNO in one bracket and SO4 outside. ना 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 ना, ये एक हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स के थ्रू बनता है। इट्स FeH2O5 with NO and SO4 out. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और इस केस में Fe का और NO का दोनों का चार्ज +1 होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। Which of the following precipitate does not dissolve even in large excess of ammonium hydroxide? AGI. AGI. This is related to the halide test, जहाँ पर the halide का salt is treated with AgNO3 and it forms the Ag halide, जहाँ पर AgCl is what color? White. AgBr? White AgBr? only thing. नहीं 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 नहीं, AgCl is white, AgBr and AgI both are yellow. बट उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए वे डिजोल्व इन एक्वियस अमोनिया, जहाँ पर AgBr डिजोल्व कर जाता है बट AgI डिजोल्व नहीं करता है। वही क्वेश्चन भी है और उसी से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो ब्रोमाइड है कि आयोडाइड है।
क्योंकि दोनों का कलर येलो, एक डार्क येलो शेड में होता है, बट इट्स रियली डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट. That's why the solubility test is carried out afterwards. Which among the following pairs of ions cannot be separated by H2S in a dilute hydrochloric acid? कौन से ग्रुप को रिफर करता है ये? Group 2. ग्रुप 2. तो कैन नॉट बी सेपरेटेड पूछा है. Option A. बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम ग्रुप. तो दोनों ही टेस्ट देगा ना. सीडी सुन प्रभु हो गए बीमार, कुछ ऐसा सुना 4 बार. बिस्मथ एंड टिन 4+ all both belong to the group 2 cations. Lead acetate gives dash color with H2S. Black. PBS का ब्लैक कलर. अच्छा, बहुत बार इससे एक और क्वेश्चन रिलेटेड है कि जो लेड पेंटिंग्स होती थी पहले के टाइम पे, लेड की पेंटिंग्स वो सल्फाइड की वजह से ब्लैकिश हो जाती थी, तो उसको निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? लेड का पेंटिंग्स become black due to the formation of PBS, so it was washed with hydrogen peroxide so that PBS converts to PbSO4, जो एक white precipitate है, plus H2. ये क्वेश्चन आया हुआ है. Lead paintings are washed with what solution? Answer is peroxide. How do we differentiate ferric and chromic in group 3? Group 3. By decreasing OH concentration. And both B and C में is B also a correct option? Yes. क्योंकि OH को डिक्रीज करना मतलब अमोनियम को इंक्रीज करना. और कैसे किया था इंक्रीज? व्हाट वाज द रिएजेंट? NH for Cl and NH for OH. कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अमोनियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा and that will in turn decrease the OH minus concentration. Then a solution when treated with dimethyl glyoxime gives a rose red complex, जिसको scarlet red भी बोला था. Nickel. It's NiDMG twice. And what is the charge of the complex? +2. Complex का charge +2 है. पक्का? तो निकल का चार्ज क्या है? यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है. हाँ, अच्छा, टेल मी, इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम a charged ligand or a neutral ligand? I think neutral. C double bond NOH, C CH3 double bond NOH. तो यहाँ पर N के थ्रू डेंटिंग होता है और ये किलेट बनाता है Ni के साथ. अब बहुत बार ना the dimethyl glyoxime complex is referred with a negative charge on the oxygen. अब यहाँ पे there is an ambiguity. कुछ बुक्स में DMG is a charged ligand with a -2 like this, और कुछ में DMG as a neutral ligand माना जाता है as H. तो जब NiDMG twice लिखते हैं तो अगर ये -2 है, this +2 ओवरऑल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज 0. और अगर हम NiDMG twice में न्यूट्रल लेते हैं तो फिर Ni के कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 आता है. तो ये एक एम्बिग्विटी है एंड बहुत सारी बुक्स में ये वाला करेक्ट लिया जाता है because maybe this particular charged ligand, because of the higher electron density, is more stable as compared to the neutral one. इसलिए कई बार NiDMG twice का ओवरऑल चार्ज भी पूछा जाता है
You just consider this as the correct complex. ध्यान रखना ये स्कारलेट रेड कॉम्प्लेक्स है ये. अच्छा हाँ, दूसरी बात, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल हियर? हाइब्रिडाइजेशन sp हाँ, sp नहीं होगा, 4 डोनर साइड्स है. इट्स अ बाइडेंटेड लिगेंड. आप इसको मोनोडेंटेड कंसिडर कर रहे हो. It will form a chelate complex like this, है ना? हेलो, yes sir तो क्या होगा? dsp2 It has to be dsp2, it can't be sp3. किलेशन हो चुका है, तो बॉन्ड्स आउट ऑफ द प्लेन जा ही नहीं सकते हैं, इसलिए याद रखना ये dsp2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है. स्कारलेट रेड NiDMG twice dimethyl glyoxime का complex. Overall charge on the complex is 0 and it is a dsp2 square planar complex. On addition of aqueous NaOH to a salt solution, a white gelatinous precipitate is formed, which dissolves in excess alkali. The salt solution contains aluminum ions NaOH में डिसॉल्व करने वाला एम्फोटेरिक आयन होना चाहिए, और इन चारों में से एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है. क्रोमियम में भी वन ऑफ द क्रोमियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, बट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है. एंड एल्यूमिनियम इज डेफिनेटली एग्जिस्टिंग ओनली एज +3, so this would be the correct answer. Clear? yes sir